problem, we have to find the generative function of the recurrence relation and the sequence of recurrence relation. Okay, so starting with the generative function. So first, generative function is defined as, so generative function of any sequence is defined as g Sn of z. Sn is sequence here and z is variable. So generative function is summation n from 0 to infinity Sn z raised to the power n. If we expand this series, it will be S0, S1z, S2z square plus so on. So we have to find the value of g from here. Okay. So basically we have to construct this term in this expression. For this expression, we have to multiply the general term Sn with z raised to the power n. So we will multiply this recurrence relation with z raised to the power n. Multiply this recurrence relation with z raised to the power n. So this equation become Sn z raised to the power n 3 Sn minus 1 z raised to the power n minus 4 Sn minus 2 z raised to the power n is equal to 0. Okay, now we need summation here, sigma here. But before, in this recurrence relation expression, subscript of s is n and power of z is n. So these two terms will be matched. तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो s का सब्सक्रिप्ट है वही z की पावर होनी चाहिए. बट यहाँ पे हम देखें अगर, तो s की जो सब्सक्रिप्ट है वो n-1 है और z की पावर है n. यहाँ पे n-2 है और z की पावर n है. तो इन्हें सेम बनाने के लिए, so what will we do? We split the powers of z. Z raised to power n can be written as z raised to the power n-1 into z, and z raised to the power n also can be written as z raised to the power n-2 into z square. Okay, so I will write this expression as Sn z raised to the power n, first term is okay, plus 3 Sn minus 1 z raised to the power n-1 into z minus 4 Sn minus 2 z raised to the power n-2 into z square is equal to 0. Okay, so simplify this expression as Sn z raised to the power n 3z Sn minus 1 z raised to the power n-1 minus 4z square Sn minus 2 z raised to the power n-2 is equal to 0. Apply sigma both side. So then equation becomes sigma Sn z raised to the power n 3z sigma Sn minus 1 z raised to the power n-1 minus 4 z square sigma Sn minus 2 z raised to the power n-2. अब अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पे इंडेक्स हमें लिखना है, बट अगर हम इंडेक्स यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें, जैसे जनरेटिव फंक्शन में n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, s-2 हो जाएगी z रेस्ट टू पावर -2. सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, अगर आप 1 पुट करोगे वो हो जाएगी s-1 z रेस्ट टू द पावर -1. बट नेगेटिव वाले सब्सक्रिप्ट वाली टर्म तो है ही नहीं. सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीक्वेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम s0. So to avoid this, we have to start the summation here from n is equal to 2. Okay, due to this we have to start the summation from n is equal to 2. तो यहाँ पे हम सभी तीनों टर्म्स में n is equal to 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 to infinity, n from 2 to infinity, n from 2 to infinity. क्या अब हम इसे g की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या ये एक्सप्रेशन को हम g की फॉर्म में लिख सकते हैं अब तीनों एक्सप्रेशन को? ठीक है, तो हमें चेक करना होगा कि ये समेशन अब
ये सीक्वेंस बना रहे हैं या नहीं बना रहे, S0 S1 Z S2 Z स्क्वायर। जब हम फर्स्ट टर्म को देखेंगे, फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे हो जाएगा S2 Z स्क्वायर S3 Z क्यूब प्लस ऑन। इसमें ना 2 टर्म्स मिसिंग है। कौन कौन सी टर्म्स मिसिंग है, एक तो इसमें S0 नहीं है और एक S1 Z नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा सच दैट इसमें ये S0 और S1 इंक्लूड हो जाएं। तो करेंगे कैसे कि इसमें ये दोनों टर्म्स ऐड कर देंगे और दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सिमिलरली अगर हम सेकंड टर्म को देखें, इस सम को देखें, यहाँ पे n=2 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, S1Z प्लस S2Z स्क्वायर प्लस ऑन। इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है, इसमें टर्म मिसिंग है S0, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे S0 को इंक्लूड करना होगा और S0 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तभी इसे G लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 2 से स्टार्ट करें तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, S0 S1Z S2Z स्क्वायर। इसे करने, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे, इसे G लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन 2 टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इंक्लूड कैसे करेंगे, हम इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट कर लें, 0 से स्टार्ट कर लें, Sn(z)⁻n। अब इसमें ये 2 टर्म्स इंक्लूड हो चुकी हैं, S0 और S1। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, क्योंकि ये टर्म्स हमने खुद से ऐड किए हैं। तो इन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, S0 माइनस S1Z। ओके, तो हमने 2 टर्म्स इंक्लूड किए और दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 3Z। यहाँ पे अगर इंडेक्स हम n=1 से स्टार्ट कर लें तो इसमें ये S0 टर्म इंक्लूड हो जाएगी, Sn-1 Z n-1। तो हमें ये टर्म्स सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये टर्म्स खुद से ऐड किए। तो यहाँ पे ये टर्म्स सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे S0। नेक्स्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम एज इट इज लिख देंगे, n फ्रॉम 2 to infinity Sn-2 Z n-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम G लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा G के इक्वल है। इस टर्म को भी हम G लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अब सारी की सारी टर्म्स इंक्लूड हो रही हैं, ये ऑलरेडी G था, ठीक है। तो अब इन्हें हम किससे रिप्लेस कर दें, G से रिप्लेस कर दें। तो दिस टर्म विल बी G माइनस S0। S0 की वैल्यू क्या थी, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो S0 इज 3 एंड S1 इज -2। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, S0 इज 3 and S1 is -2, so this term will be plus 2Z, okay, plus 3Z। यहाँ पे G लिख सकते हैं, G माइनस S0 इज 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस 4Z स्क्वायर, ये G ही था, इक्वल टू 0। अब इसमें से हम G वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे, तो G -3 प्लस 2Z प्लस 3ZG माइनस 9Z माइनस 4Z स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे G वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो होगी यहाँ पे टर्म G, एक 3GZ और एक माइनस 4Z स्क्वायर G। तो इन तीनों टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, तो G प्लस 3ZG माइनस 4Z स्क्वायर G इक्वल टू, अब ये टर्म्स राइट हैंड साइड में जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3 प्लस 3 माइनस 2Z प्लस 9Z। ओके, so this will become, taking G common from here, तो G1 plus 3Z minus 4Z square is equal to 3 plus 7Z, 9 minus 2 is 7। ओके, तो यहाँ से G की वैल्यू क्या हो जाएगी, G is 3 plus 7Z डिवाइड बाय 1 plus 3Z minus 4Z square। ओके, सो दिस टर्म इज आवर जनरेटिव फंक्शन। तो यहाँ से एक पार्ट सॉल्व हो गया, तो हमने जनरेटिव फंक्शन फाइंड कर दिया यहाँ से। ओके, so this is our generative function। So now we have to find the sequence of generative function, okay। So how to find this sequence, first we have to find the factors of denominator। So denominator here is 1 plus 3Z minus 4Z square। So this can be middle term splitting, we can factorize it as 1 plus 4Z minus Z
minus 4z square. Taking 1 from first two terms, 1 plus 4z minus z, तो 1 plus 4z. तो यहाँ से ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 minus z 1 plus 4z. This is a factorization of denominator. So g will become, g is equal to 3 plus 7z divided by 1 minus z or 1 plus 4z. So we will find its partial fractions. So partial fractions are writing this expression as a over first factor b over second factor 1 plus 4z. We will find its partial fractions. तो हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. So this is called partial fractions. ठीक है, ठीक है. तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे अगर, तो यहाँ से 3 प्लस 7z 1 माइनस z और 1 प्लस 4z. यहाँ पे एलसीएम ले लो आप. एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस z और 1 प्लस 4z. a टाइम्स 1 प्लस 4z प्लस b टाइम्स 1 माइनस z. तो अगर हम ये दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दें डिनोमिनेटर्स में से, तो यहाँ से जो टर्म बनेगी वो बन जाएगी 3 प्लस 7z इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 4z प्लस b टाइम्स 1 माइनस z. इसे थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस 4az b माइनस bz. तो 3 प्लस 7z. तो 3 plus 7z equal to a plus b, collecting the constant terms and terms with z. तो 4a minus b z. तो मैंने क्या किया, z वाली टर्म्स अलग कर ली और कांस्टेंट टर्म्स अलग कर ली. तो यहाँ से अब बाय कंपेयरिंग द टर्म्स, कांस्टेंट टर्म क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट टर्म इज 3 और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, a प्लस बी विदाउट z. ओके, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में z वाली टर्म कौन सी है, 7 है, और राइट हैंड साइड में 4a माइनस बी है. तो दोनों टर्म्स को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, सो वी विल गेट a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड 4a minus b equal to 7. Let us call this equation as 1, this equation as 2. ठीक है, so now we have to find the value of a और b from here. So a और b कैसे find कर सकते हैं, by adding these two equation a plus b equal to c, by elimination 4a minus b equal to 7. तो elimination लगा देंगे, दोनों equations को add करोगे आप तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएंगे, तो 5a equal to 10. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 2 प्लस b इक्वल टू 3 हो जाएगा. तो यहाँ से b इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1. सो वैल्यू ऑफ b इज 2. सो नाउ राइटिंग g एज अ पार्शियल फ्रैक्शन. तो g की वैल्यू क्या थी आपके पास, a ओवर 1 माइनस z, b ओवर 1 माइनस 1 प्लस 4z. ओके, so putting the values of a and b, तो g will become 1 over 1 minus z, a is 2, तो 2 over 1 minus z, b is 1 over 1 plus 4z. Now we have to find the sequence. So there are some results, so I am writing those results which are most important. So here we have a sequence and its right hand side here is है generative functions. तो अगर आपके पास क्या हो, constant sequence हो, some constant c, so then its generative function will be c over 1 minus z. अगर आपके पास क्या हो, some constant raised to power n हो, sequence is constant raised to power n, then its generative function will be 1 over 1 minus az. So using these two results, can we write the sequence, can we write the sequence of generative function Sn? So this term is matching with this term, 2 over 1 minus z is matching with c over 1 minus z. So its sequence will be 2 plus, so the second term is matching 1 over
1 माइनस जेड इज मैचिंग विद 1 ओवर 1 प्लस ए जेड। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे, जेड का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए है, और माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। तो अगर आपको इसकी सीक्वेंस लिखनी है तो कैसे लिखनी है, ए रेज टू पावर एन लिखना है। तो इसकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी आपके पास, -4 रेज टू द पावर एन। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, sequence of unity function by using these two results. Okay.